हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज रॉक्स एंड मिनरल्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ और उनके कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं एंड वो कैसे एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में भी डिफर करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने करिकुलर गोल्स को समझ के। इस चैप्टर के एंड तक हमें क्या चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। अंडरस्टैंड हाउ मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। कैसे हम लोग डिफरेंट मिनरल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिस्कस रिस्पॉन्सिबल माइनिंग एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द एनवायरमेंट। हमारा जो एनवायरमेंट है, हाउ इज इट गेटिंग अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस माइनिंग वी आर डूइंग। सो हाउ कैन वी माइन responsibly, है ना? Now, what are the concepts that are going to be clear after this chapter? They are rocks and the types of rock. कितने टाइप के रॉक्स होते हैं और रॉक्स एक्चुअली में होते क्या हैं? एंड सेम विद द मिनरल्स, what are minerals and what are the uses of rocks and minerals. हम लोगों ने इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम लोग एज ह्यूमंस वी ट्राई टू फाइंड आउट द यूज ऑफ एवरीथिंग एंड हम लोग ऐसे ही इनका भी यूज फाइंड आउट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, let us start by reading the chapter and understanding line by line what are rocks and minerals. Okay, I hope आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट हो because this tells us about the geography of earth. ठीक है, let's start. We see different types of building around. हम अपने around बहुत different types of buildings देखते हैं. You must have visited Taj Mahal, Red Fort, Qutub Minar, or may have seen them on television. You have seen all these historical monuments like Taj Mahal, Red Fort, and Qutub Minar. Now, these monuments are made of various materials which are made of rocks and minerals. Now, what is used to make these monuments? Rocks and minerals are used. The earth contains different types of rocks and minerals. Earth में हमारे बहुत different type के rocks and minerals present होते हैं. A piece of rock is made of fine particles called grain. आपका एक rock किससे बना है? It's made of fine particles which are grains. अगर आप rock को break down करेंगे, you will get the grains. The composition and color of the rock varies from place to place. What is the rock composing of? What are the compositions of the rock and what is the color of the rock will be different, okay, from place to place. This is because temperature and pressure conditions of rock solid at times of cooling. ठीक है, अब ये क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन जो है वो चेंज होती है एंड द सॉइल ऑल्सो चेंजेस एट द टाइम ऑफ कूलिंग. ठीक है, द स्मॉल ग्रेन्स इन रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल्स. जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर मिनरल. Taj Mahal is one of the seven wonders of the modern world. It is made of white marble. So Taj Mahal है, it is one of the seven wonders, and what it is made of? It's made of white marble. The Red Fort is one of the historical forts of India, and it is made of red sandstone. जो हमारा Red Fort है, it is made of what? It is made of the red sandstone. All these monuments are very beautiful. Why? Because the rocks are beautifully carved, right? Now let's see a science sparkle. Green granite is one of the hardest substance on earth. Green granite जो है वो क्या है? It is the hardest substance. It is very hard to break and it is present on the earth. Okay. The Mount Rushmore is the America is made of igneous rock. तो Mount Rushmore जो है अमेरिका का, it is made of what? It is made of igneous rock. You can see the Mount Rushmore, how beautifully the faces are carved into it. It is made of igneous rocks. Okay. Now, what is a rock? It is the solid part of the earth that has many types of minerals packed in it. Okay. It is the solid part and it has many minerals packed in it. It is the form of small pebbles, big boulders and mountains. इसमें बहुत small pebbles, big boulders and mountains present होते हैं. ठीक है. Now let us study about the types of rock. Types of rock क्या होती हैं? Depending upon the way they are formed. जिस way से वो बने हैं उस पे depending कितने types of rock होते हैं. There are three types. तीन types के होते हैं. Igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Igneous, sedimentary and
metamorphic. These are the three types of rock. Okay, what are igneous rocks? Igneous rocks होते हैं, they are formed of molten rock present in the earth core and flow out from earth's interior on the surface and solidifies. अब ये क्या होते हैं? Molten rocks होते हैं, like they are at a very high temperature, and when they come on the earth, then they solidify. These are called igneous rocks. Okay, the earth can be divided into three layers. Earth को हम लोग किस में divide कर सकते हैं? We can divide it into the three layers, which is crust, mantle, and the core. Crust, mantle, and the core, these are the three layers. When inside the earth, molten rock is called, जब earth के अंदर होता है, तो molten rock is called magma. When it flows out, it is called lava. जब वो flow out करने लगता है, it is called what? It is called lava. ठीक है? Now let us see the types of igneous rock. Type क्या है igneous rock? बहुत different types होते हैं depending अपॉन मैग्नम कूल्स डाउन. कैसे मैग्नम कूल हो रहा है उसके बेसिस पे इग्नियस रॉक्स के टाइप्स होते हैं. चलिए, तो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग कवर करते हैं. अब फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक कैसे डिफरेंट है दूसरे रॉक से? बिकॉज इट्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा. ये लावा जब कूल हो जाता है अर्थ के सरफेस पे, उससे फॉर्म होता है. इट इज डेंस एंड डार्क इन कलर. ये कैसा होता है? इट्स डेंस एंड डार्क इन कलर. इट हैज फाइन ग्रेन्स. इसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं दोज आर वेरी फाइन. इट इज ग्लासी. ग्लास जैसा ये आपको लगेगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेनाइट. अब ग्रेनाइट कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा. जब लावा स्लोली कूल डाउन होता है तब ये बनता है. इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फ्लोर्स ऑफ हाउसेस, मेकिंग स्टैचूज एंड पेविंग रोड. इट इज ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, पिंक इन कलर. अब ये किस लिए यूज हो रहा है? इट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फ्लोर्स ऑफ हाउसेस एंड मेकिंग स्टैचूज. ठीक है, उसके लिए यूज हो रहा है. एंड ये इसके दो वेरिएंट है, ग्रे एंड पिंक कलर के वेरिएंट्स है. बाकी ये दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल होता है. नाउ वी हैव द pumic stone. Now let's study about the pumic stone. What we can get? Pumic stone is the only stone which can float. It is the only rock or the stone which can float. Why? It can float because it has a large number of holes. ठीक है, air trap हो जाती है and it takes time for formation. इनके holes में क्या होता है? Air is getting trapped, but इसको form करने में time लग जाता है. How is it used? It is used for the scrubbing of stone. It is like used as a scrubbing stone, and it removes the dead skin. And dentists use its powder to form for polish of our teeth. हाँ, डेंटिस्ट इसे कैसे यूज करें? दे यूजिंग इट एज अ पॉलिश. और हम लोग इसको डेड स्किन रिमूव करने के लिए generally from our ankles, they get a little dead skin, we can remove that. Now let us study about the sedimentary rocks. अब sedimentary rocks क्या होते हैं? अब जब हमारे जो heating and cooling होती है mountain sides की by the sun, rain, wind, they make the rocks wear down. These small pieces of rocks are carried by the rivers, strong winds, and lakes. Repeated deposition presses down the lower layer and harden them into rock. अब क्या होता है? इनका repeated deposition होता है और they get hardened into rocks. ठीक है, these layers are called what? These layers are called sediments. इन layers को हमने क्या बोला? इनको हमने बोला sediments. Such rocks are formed by layers called sedimentary rocks. ये जो layers से rocks बन रहे हैं ना, उनको हमने sedimentary rocks बोलते हैं. Now we'll study about the types of sedimentary rocks. How many types are there? First is sandstone. इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि it was used to make what? It was used to make the red fort. Okay. Now sandstone is what? It's a soft stone and it is formed when small particles of sand get compressed. जब बहुत small particles sand के compress हो जाते हैं, it is formed. इसके अंदर कौन सा mineral होता है? It has quartz. ठीक है, many buildings in Delhi, Agra, places in Rajasthan are made of sandstone. ये इन जगहों पर आपको बहुत commonly used मिल जाएगा. Now let's study about conglomerate. ठीक है, it is a solid mass of pebbles and gravels cemented together with minerals. क्या होते हैं? जब pebbles and gravels they are cemented together, they form this rock.
ठीक है। और ये कौन से कलर में होता है? इट्स जनरली ऑरेंज एंड ग्रीन इन कलर, और ये कोरस ग्रीन से बना होता है. इट इज मेड ऑफ कोरस ग्रीन. कोरस ग्रीन्स आर द ग्रीन्स व्हिच आर नॉट दैट फाइन, दे आर thicker, they are bigger. Okay. And ये क्यों यूज होता है? इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिश मेक टू मेक ऑर्नामेंट्स. इसको अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो इससे ऑर्नामेंट्स भी बन जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट स्लेट. इट इज फॉर्म्ड व्हेन द क्ले layers are hardened. जब हम क्ले की लेयर्स को हार्डन कर देते हैं, these are formed and these are used for making what? For making bricks and tiles. Okay. It is a smooth rock. ये स्मूथ रॉक होता है, यानी इसका जो सरफेस होता है, when you touch it, you'll feel that there is a smoothness. Your hand is gliding through. Okay. Now let's study about the limestone. When shells and skeletons of million tiny sea creatures settle in the seabed, they form a layer. ठीक है. क्या हुआ? जब हमारे सी क्रीचर्स की डेड बॉडीज या उनकी डेड रिमेन्स क्या होता है? दे सेटल डाउन, द बोन्स सेटल डाउन, तो क्या होगा? दे फॉर्म अ लेयर. और इसमें क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम एंड एनिमल शेल्स होते हैं. इट इज सॉफ्ट एंड दीज लेयर हार्डन टू फॉर्म लाइमस्टोन. जब ये लेयर्स हार्डन हो जाती हैं, दे फॉर्म लाइमस्टोन. सीमेंट, लाइम, चॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लाइमस्टोन. जब उनका स्केलेटन harden हो गया over a period of time, those form limestone. What does wear down mean? It means cut down into small pieces. When you cut something down into smaller pieces, it means wear down. Okay. These are the pictures of these stones. How beautiful and how different they are from each other. You can notice, my kids. Okay. Now let's study about metamorphic rocks. Okay, what are metamorphic rocks? These are formed when igneous or sedimentary rocks are subjected to high heat or pressure inside the earth. जब sedimentary या igneous rock को बहुत high heat या बहुत high pressure दिया जाता है, तो we get metamorphic rocks. The mineral content of these rocks are transferred. जो इनके mineral content होता है, वो transfer हो जाता है ना? अब देखते हैं एक साइंस स्पार्कल. द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड यूज्ड टू गेट ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्स. जो इनके डेड रिमेन्स होते हैं, वो एनिमल्स के वो ट्रैप हो जाते हैं इन सेडिमेंट. लेटर दे टर्न इनटू फॉसिल्स. और लेटर क्या होता है? Then they get turned into fossils. Scientists take this fossil and analyze their bone structure. साइंटिस्ट अब इन फॉसिल्स को लेते हैं और उनका बोन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. दे आर एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एज ऑफ द फॉसिल. साइंटिस्ट इस फॉसिल का एग्जैक्ट एज भी फाइंड आउट कर पाते हैं. वो स्केलेटन से उस ऑर्गेनिज्म के बारे में एक काफी अच्छा डिटेल्ड फ्रेमवर्क भी निकाल पाते हैं. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक अभी मैंने आपको बताया, जब सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स को बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत हाई प्रेशर से गुजरना पड़ता है इन द अर्थ कोर, दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ फर्स्ट वन इज मार्बल. ओके, द मार्बल इज फॉर्म्ड कब फॉर्म होगा? जब लाइमस्टोन गोज अंडर सेवरल चेंजेस. जब लाइमस्टोन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इट बिकम्स अ मार्बल. मार्बल में हमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं एंड ये फ्लोर्स, वॉल्स, स्टैचूज एंड डेकोरेटिव थिंग्स बनाने के काम आता है. एंड इट कैन बी कैरीड एंड पॉलिश्ड इजीली. इसको आप बहुत आराम से पॉलिश करा सकते हैं. ज्यादातर हम फ्लोर्स वगैरह देखते हैं ना, दे आर मार्बल फ्लोर्स. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट स्लेट. अब स्लेट क्या होता है? It is formed when clay, a sedimentary rock, undergoes several changes. जब वो sedimentary rock बहुत सारे changes के अंदर जाता है, it forms a slate. और ये कैसे कलर में होती है? It's dark grey in color and used to make cement, bricks, rooftops and floor. ये इन सब चीजों को बनाने में हमारे बहुत काम आती है. और it is used in mountains where bricks cannot be transported. जहां ब्रिक्स नहीं जा पाती, वहां पे हम लोग ये स्लेट यूज कर लेते हैं. ये ट्रांसपोर्ट वहां पे आराम से हो जाती है. सो सी व्हाट अ क्लेवर वे वी हैव टेकन आउट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट गिनीज. नाउ इट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रेनाइट रॉक अंडरगोज मेनी चेंजेस. जब ग्रेनाइट बहुत सारे चेंजेस अंडरगो करता है, एक ऐसे स्ट्राइटेड पैटर्न आपको शो होगा एंड देयर आर लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर. इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन. ये बिल्डिंग स्टोन के काम में भी आता है.
Now let's study about quartzite. What's a quartzite? It is formed when sedimentary rocks undergo many changes. It is a very hard rock. ये बहुत हार्ड रॉक होता है ये, है ना? एंड ये ग्लास इंडस्ट्री में और ज्वेलरी मेकिंग, ग्लास इंडस्ट्री और ज्वेलरी मेकिंग दोनों में बहुत काम आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड? एक्सट्रैक्टेड का मीनिंग होता है ऑब्टेन. जब हम किसी चीज से किसी चीज को निकाल लेते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सट्रैक्टेड. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विद फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन भी होती है. दे अकर इन नेचर. ये हमको नेचुरली मिल जाएंगे. एंड दे आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमारे अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं सिंपल होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. ठीक है, रॉक्स भी हमारे मिनरल से ही बने होते हैं. Gypsum and mica are non-metallic minerals. ये कौन से minerals हैं? These are non-metallic minerals. Gold, silver and copper are metallic minerals. Gold, silver और copper हमारे metallic minerals होते हैं. यूजेस क्या होते हैं हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स के? अब हम लोगों ने रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ तो बहुत लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ कैन वी यूज देम, राइट? वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. फर्स्ट, टू गेट मेटल. कोई भी मेटल अगर हमें चाहिए हो उसके लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स. जो मेटल्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? वी एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम मिनरल्स. अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर. एक मिनरल जिसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओर. अब जो हमें आयरन मिलता है, इट कम्स फ्रॉम हेमाटाइट. एल्यूमिनियम कम्स फ्रॉम बॉक्साइट एंड कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट. जिंक फ्रॉम कैलमाइन. These are the minerals which are giving us such metals, and these metals daily life में हम यूज करते हैं. हम इनकी यूजेस पता है? कॉपर वायर, सारी वायरिंग कॉपर से ही तो होती है. सो कॉपर इज वेरी यूजफुल. देन वी हैव गोल्ड ज्वेलरी. गोल्ड ज्वेलरी जो हम एक फेस्टिविटी दिखाने के लिए, वी लाइक वेयरिंग दिस, इट मेक्स अस लुक ब्यूटीफुल, है ना? एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स जो हम डेली बेसिस पे टू ईट टू कुक हम यूज करते हैं, है ना? नाउ टू गेट फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. फ्यूल्स जो हमें मिलते हैं कोल और पेट्रोलियम जैसे, उनके लिए भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? उनके लिए भी हम लोग यही मिनरल्स यूज कर रहे हैं. कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, निफिता एक्सेट्रा फॉर्म रॉक्स. ये सब क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म रॉक्स. ओके, अब कोल क्या है? कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक formed from remains of dead plants which survived million years ago. ये किससे बने हैं? They are made from the dead plants which survived millions years ago. Due to high temperature and pressure inside the earth, these remains plants become coal. बहुत high temperature और pressure की वजह से क्या होता है? These remain inside the earth and these become coal. ये earth के अंदर रहते हैं और ये coal बन जाते हैं. और यूज किस लिए होते हैं? They use for cooking, for electricity and preparing cement. Cooking, electricity, cement सबके लिए यूज होता है. And it is form of carbon. ये क्या है? These are a form of carbon. ठीक है. Now we have fuel. Fuel क्या होता है? It is a substance which gives energy on burning. ये एक ऐसा substance है जो energy देता है burning के बाद. Now the next topic that we have is petroleum. Petroleum is formed कब बनता है? When small animals are buried under earth for million of years. जब छोटे छोटे animals earth के अंदर चले जाते हैं, they are buried, this is built. Now what happens? Due to high temperature and pressure, the organisms are converted into crude petroleum. So now we'll cover the uses of petroleum and natural gas. जो हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा कि कैसे इट इज फॉर्म, नाउ वी विल सी व्हाट आर द यूजेस. इसके यूजेस क्या है? एलपीजी में यूज होता है फॉर कुकिंग, पेट्रोल इज यूज्ड इन कार्स, सीएनजी इन बसेस एंड केरोसिन इन जनरेटर्स. ठीक है, ये आपके कुछ यूजेस हैं जो आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के हैं. अब पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन कर देते हैं तो वी गेट पेट्रोल, डीजल, grease and other chemicals. Gases such as कौन से gases?
एलपीजी और सीएनजी ये कहाँ से आती है? ये पेट्रोलियम डिपॉजिट से ही आती है। नाउ वी हैव टू गेट जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स के लिए भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग these minerals only. Many attractive minerals such as diamond, ruby, ये क्या होते हैं? They are used as gemstones. इन्हें हम gemstones की तरह यूज करते हैं। ये जो minerals होते हैं they are very hard. They are found in form of crystals. ये minerals किस form में मिलते हैं? They are found in form of crystals. Okay. When cut and polished by experts, they become beautiful gemstones. ये जो है जब इनको कट और पॉलिश कर दिया जाता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, they become such beautiful gemstones like emerald, diamond, sapphire and ruby. So now let's see the key takeaways. क्या की टेकअवेज रहेंगे इस चैप्टर के? द अर्थ सर्फेस इज मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल। जो अर्थ का सर्फेस है वो किससे बना है? इट्स मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं क्या? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। इग्नियस रॉक्स कब बनते हैं? मोल्टन रॉक्स कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज। जब मोल्टन रॉक्स जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं एंड देन दे सॉलिडिफाइड। Sedimentary rocks are formed by repeated deposition of rock material. Repeated deposition जब होता है rock materials का तब बनते हैं sedimentary rocks. Metamorphic rocks क्या होते हैं? They are formed due to physical and chemical changes in igneous or sedimentary rocks by heat or pressure. Heat और pressure से जब metamorphic rocks में कोई physical या chemical change आता है, we call them what? Metamorphic rocks. Okay. We get gemstone from rock. Gemstones हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। डायमंड जो है वो वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट इन सेडिमेंट्री लेयर्स। जो हमारे फॉसिल्स होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं सेडिमेंट्री लेयर्स में। रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जो आपके रॉक्स और मिनरल्स होते हैं ये यूज होते हैं बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए। This was the end of this chapter. I hope this chapter was clear to you. इसमें बहुत वैरायटी के बारे में हमने बात करी, बहुत न्यू न्यू नेम्स आपने इस चैप्टर के थ्रू डिस्कवर किए होंगे। I hope you enjoyed this. Now I'll meet you in the next chapter. Until then, you have to take very good care of yourself and you have to keep learning about something new every day. Thank you, kids.